میں ہوں ماہرخ شہریار۔ بلٹن کا آغاز ہوگا آج کی بڑی خبر کے ساتھ۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے فوری اقدامات کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مظاہرین کے ساتھ تحمل اور یہ بردباری کا مظاہرہ کریں، غیر ضروری سختی سے اجتناب کیا جائے، یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑا فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے لیا گیا کیونکہ وہاں پر حالات جتنے کشیدہ تھے۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے خود باقاعدہ طور پر کہا کہ اس کمیٹی کی نگرانی میں خود کروں گا، اور کمیٹی کے بھی بڑے اہم ممبران ہیں جو کہ اس میں شامل ہے، جو وہاں پر پہنچے ہیں مذاکرات کے لیے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ کہا گیا ہے کہ سب چیزوں کا حل مذاکرات ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر میں ناخوشگوار واقعات، وزیر اعظم شہباز شریف کی صورتحال پر گہری تشویش، شفاف تحقیقات کا حکم جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے، مظاہرین امن و امان کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، عوامی جذبات کا احترام کیا جائے اور غیر ضروری سختی سے اجتناب کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ وزیر اعظم نے مظاہروں کے دوران ناخوشگوار واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شفاف تحقیقات کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متاثرہ خاندانوں تک فوری امداد پہنچانے کی ہدایت کی ہے، جبکہ مذاکراتی کمیٹی کو ہدایت دی گئی ہے کہ اپنی سفارشات اور مجوزہ حل بلا تاخیر وزیر اعظم آفس بھجوائے۔ انہوں نے وطن واپسی پر مذاکراتی عمل کی ذاتی نگرانی کا اعلان بھی کیا ہے۔ یہ بہت خوش آئند ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر اعلیٰ سطحی کمیٹی مظفر آباد پہنچ چکی ہے۔ روانگی سے قبل کمیٹی ارکان نے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات سن کر مسائل حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے مطابق عوامی ایکشن کمیٹی کے زیادہ تر مطالبات مان لیے گئے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف اور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ مسائل کا حل صرف اور صرف مذاکرات میں ہے، تشدد سے معاملات مزید الجھیں گے۔ ایک اعلیٰ مظفر آباد جا رہے ہیں تاکہ وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیں اور جو مظاہرین ہیں ان سے بات چیت کریں، اور ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ کوئی ایسا قدم کہ جو حکومت کے بس میں ہے جس سے کہ ان کی مشکلات کو دور کیا جا سکے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس سے قبل دو ہمارے معزز وفاقی وزراء وہاں تشریف لے گئے تو اس وقت جو ایکشن کمیٹی کے دوست تھے ان کا اظہار یہ تھا کہ بہت سارے معاملات طے ہو چکے ہیں اور چاند ایک رہ گئے ہیں۔ تو ہماری حتی المقدور کوشش ہوگی کہ کشمیر کے عوام کو ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ فوراً پورے کیے جائیں اور اس صورتحال سے جتنی جلدی نکالا جا سکے نکلے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ تشدد جو ہے اس سے معاملات الجھتے ہیں، سلجھتے نہیں، تو ہمیں بیٹھ کے آپس میں جو ہے وہ بات کرنی ہوگی۔ اور آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے آزاد کشمیر کے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ ایکسپرٹ پیغام میں کہا کہ احتجاج کرنے والوں کو مقبوضہ کشمیر کی 3 نسلوں کی جدوجہد کو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو سہولیات آزاد کشمیر میں میسر ہیں ان کا تصور بھی وہاں نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیریوں نے جیلیں کاٹیں، پھانسیاں قبول کی اور خون دے کر پاکستان سے محبت کا ثبوت دیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور دیتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے حلقے سیالکوٹ میں بھی بڑی تعداد میں کشمیری مہاجرین آباد ہیں جنہوں نے 1947 میں جموں سے ہجرت کر کے بے پناہ قربانیاں دیں۔ آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں احتجاج کی آڑ میں عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسند عناصر اشتعال اور تشدد پر اتر آئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے کئی بار مذاکرات کی دعوت کے باوجود بھی عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج جاری ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی میں شامل چند شرپسندوں نے پولیس اہلکاروں پر حملے کیے ہیں۔ پولیس کے مطابق اہلکاروں سے اسلحہ اور دیگر سامان بھی چھینا گیا ہے۔ اہلکاروں کا کہنا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے ہمیں یرغمال بنا کر وردیاں پھاڑیں اور ڈنڈے بھی مارے۔ اور اب ذکر کریں گے غزہ کے محصور اور قحط زدہ عوام کے لیے عالمی کارکنان کا امدادی قافلہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے۔ فلوٹیلا میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی شریک تھے۔ معروف سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ، یورپین رکن پارلیمنٹ ریما حسن سمیت دنیا کے مختلف خطوں سے 500 سے زائد افراد اس قافلے کا حصہ ہیں۔ اسرائیلی بحریہ نے 20 جنگی کشتیوں کے ذریعے 40 سے زائد کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا کو گھیرے میں لیا اور کئی کشتیوں پر پانی کی توپوں سے حملہ کیا۔ دنیا بھر میں احتجاج جاری ہے۔
इसराइल की जंगी जराइम और इंसानी हुकूक की पामाली की इंतहाई शर्मनाक हरकत। इंसानी इमदाद ले जाने वाले निहत्ते रजाकारों पर हमला कर दिया। गजा के महसूर और कहर ज़दा अवाम के लिए आलमी कारकुनान के इमदादी काफिले ग्लोबल समूद फ्लोटेला में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शरीक थे, जबकि मारूफ स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी। यूरोपियन रुकन पार्लियामेंट रेमा हसन समेत दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से 500 से जायद अफराद इस काफिले का हिस्सा। इसराइली बहरिया ने 20 जंगी कश्तियों के जरिए 40 से जायद कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटेला को घेरे में लिया और कई कश्तियों पर पानी की तोपों से हमला किया। मुंतजमीन का कहना है कि काबिज फोर्सेज ने देरिया सेन समेत कई कश्तियों पर धावा बोला और नशरियात मुनक़ता कर दी। पाकिस्तानी साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी हिरासत में ले लिए गए। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुसाफिरों को इसराइली पोर्ट पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुंतजमीन के मुताबिक इसराइली कार्रवाई के बावजूद तकरीबन 30 कश्तियाँ अब भी गजा की जानिब रवां दवा हैं, जो सिर्फ 85 किलोमीटर के फासले पर हैं। रजाकारों पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। पाक फ़लस्तीन फोरम का इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। इस्तांबुल में आलमी समूद फ्लोटेला के साथ इज़हार यकजहती और इसराइल मुखालिफ मुज़ाहरा। इंसानी हुकूक के कारकुनान का कहना है कि इसराइली दबाव और रुकावटों के बावजूद इमदादी मिशन हर सूरत जारी रहेगा। ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमला। कश्ती में सवार समाजी कारकुनान और मारूफ शख्सियात ने इसराइली सफाकी के बाद की वीडियोस जारी की हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने कहा है कि हम गजा पहुँच कर ही रहेंगे। इसराइल ने जो किया वो आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। दीगर ने भी इसराइल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समूद गजा फ्लोटेला पर इसराइली अफवाज के हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ्लोटेला में 44 ममालिक के सैकड़ों इमदादी कारकुन सवार थे जिन्हें इसराइली अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। उनका कारकुनान का वाहिद जुर्म ये था कि वो बेबस और मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद ले जा रहे थे। वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया कि तमाम गिरफ्तार कारकुनान को फ़ौरी और गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए और फ़लस्तीनी अवाम तक इमदाद की बिला तातुल तरसील को यकीनी बनाया जाए। इसराइली बर्बरियत को फ़ौरी तौर पर रोकना जबकि फ़लस्तीन में पायदार अमन के क़याम को यकीनी बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। और इस पर बैकलैश आना शुरू हो चुका है। जमात इस्लामी ने कल इसराइल के खिलाफ यौम एहतजाज मनाने का ऐलान कर दिया है। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा अमन और इंसानियत के खिलाफ साजिश है। फ़लस्तीनी सरजमीन के वारिस इस मंसूबे में शामिल ही नहीं है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के खिलाफ मुआहदा तस्लीम कर लिया है, जिसका वाज़ेह मतलब इसराइल को तस्लीम करना है। इसराइल को तस्लीम करने की शदीद मज़ाहिमत अब गली मोहल्लों सड़कों पर होगी। हुक्मरान तबका इबरत का निशान बन जाएगा। जो मंसूबे की बात कर रहे हैं, दरहकीकत ये अमेरिका ही है जो इसराइल को ये ताकत फराहम करता है कि वो नस्ल कुशी करे। इन लाशों पर जो अमन मंसूबा पेश किया गया है वो खुद अमन की भी तौहीन है, इंसानियत की भी तौहीन है। जो अमन मंसूबा पेश किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें जो बुनियादी फरीक है उसका तस्करा ही नहीं किया गया, यानी फ़लस्तीनी। हमें अफसोस है इस बात का कि पाकिस्तान की हुकूमत ने उसके मंसूबे के ऐलान करने से पहले उसको तस्लीम कर लिया। इसलिए हम हुकूमत के इस पूरे रवैये की मजम्मत भी करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि वाज़े तौर पर वो ये ऐलान करें कि हम सिर्फ एक रियासत चाहते हैं और वो है फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत। इसके अलावा जितनी बातें भी आप तस्लीम करेंगे वो इसराइल के मौक़िफ़ को मजबूत कर सकती हैं। किसी भी सूरत में इब्राहिम एकॉर्ड या इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जो पेशरफ्त होगी उसकी शदीद मुज़ाहमत होगी, गली मोहल्लों में होगी, सड़कों पे होगी, हर लिहाज से होगी और ये हुक्मरान तबका इबरत का निशान बन जाएगा इंशाअल्लाह। और हमास के हुक्काम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन मंसूबे में गैर मुसल्लह होने से मुतालिक शिकों में तरमीम चाहते हैं। हमास के मुज़ाकरातकारों ने मंगल को दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुक्काम के साथ बातचीत की। नाम जाहिर न करने की शर्त पर ज़राए ने कहा कि यह हसास मामला है और मज़ीद बताया कि तंजीम को जवाब देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन दरकार हैं। फ़लस्तीनी ज़राए ने कहा है कि हमास गैर मुसल्लह होने और मज़ाहमती धड़ों के कारकुनान की बेदखली जैसी कुछ शिकों में तरमीम चाहती है। ज़राए के मुताबिक हमास के रहनुमा गजा पट्टी से मुकम्मल इसराइली इनखला के लिए बैनुल-अक़वामी ज़मानतें और इस बात की यकीन दहानी भी चाहते हैं कि इलाके के अंदर या बाहर किसी किस्म की टारगेट किलिंग नहीं होगी। और इस सब के बावजूद भी इसराइल के गजा शहर पर हमले जारी हैं। मज़ीद 11 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मगरबी इलाके अंसार में इसराइली ड्रोन की फायरिंग से एक बच्चा शहीद हो गया है। वस्ती गजा की पट्टी में नकल मकानी कैंप पर हमला किया गया। 9 फ़लस्तीनी शहीद और 13 ज़ख्मी हो गए। हमास का ट्रंप मंसूबे में तरमीम का मुतालबा भी सामने आया है। इसके अलावा रफ़ा के करीब बच्चों को कत्ल करने वाला एक इसराइली स्नाइपर मारा गया।
गजा लहू लहू, इसराइली जंगी जराइम जारी, पनाह गुज़ीनों के कैंपों पर हमले, वस्ती गजा में तीरुल बलाग के जुनूब में फ़लस्तीनियों पर ड्रोन हमले, एक फ़लस्तीनी शहीद और 10 ज़ख्मी कर दिए। मगरबी इलाके अंसार में एक बच्चा शहीद, वस्ती पट्टी में नकल मकानी करने वालों के कैंप पर हमला, 9 शहीद 13 ज़ख्मी हो गए। अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल ने 66,148 अफराद को शहीद किया, जबकि 1,67,716 ज़ख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब रफा के इलाके में बच्चों की टारगेट किलिंग करने वाला इसराइली स्नाइपर मारा गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने लिखा, एक और बच्चों का कातिल जहन्नुम वासिल हुआ। फलस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास ने डोनाल्ड ट्रंप के मुजव्वज़ा 20 नुकाती गजा अमन मंसूबे में तरमीम का बाकायदा मुतालबा कर दिया। दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी सालसी के साथ होने वाली गुफ्तो शनीद के दौरान हमास का मौक़िफ़ है कि गैर मुसल्लह होने की शिक में तरमीम, इसराइल का मुकम्मल इनखला शामिल होना चाहिए और रहनुमाओं की मुल्क के अंदर या बाहर टारगेट किलिंग नहीं होगी। और चीन के अवाम की बेपनाह मोहब्बत बार बार चीन ले आती है। 16 से ज़ायद बार चीन का दौरा कर चुका हूँ। और पंजाब के अलावा दीगर सूबों के बच्चे अपनी हुकूमतों से सवाल करें कि हमारा होनहार स्कॉलरशिप कहाँ है। हुक्मरानों का काम सिर्फ वोट लेना नहीं। कहा जाता है कि दुनिया से मदद की अपील क्यों की जाती है। कुछ करना चाहती हूँ तो कह दिया जाता है कि IMF नहीं मानेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में तलबा के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा कि पंजाब में 50,000 स्कूल्स हैं, होनहार तलबा को लैपटॉप्स दे रहे हैं। पाकिस्तान के सब शहरी मेरे लिए बराबर हैं। सिफारिशी कल्चर का खात्मा किया और मेरिट को भी फ़रोग़ दिया। किसी भी ऑफिसर की तैनाती से पहले खुद इंटरव्यूज़ करती हूँ। मज़ीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। साल में बनी है हकीकत। वो तमाम सरकारी स्कूल जो मयारी स्कूल है वो बन रहे हैं, वो हकीकत है। हकीकत ये है कि पूरे बाकी पाकिस्तान में रोटी जो है वो अभी भी 20 रुपए की, पंजाब में 13 रुपए की रोटी है। हकीकत ये है कि पंजाब में बदतरीन सैलाब आता है। आज मैं कुछ भी करना चाहती हूँ तो मुझे कह दिया जाता है कि नहीं IMF इसकी इजाज़त नहीं देगा। आप सोचो कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बतौर पाकिस्तानी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कितनी बड़ी तजलील है। 5 साल अगर अल्लाह ताला ने मुझे दे दिए तो पंजाब एक बहुत तरक्की याफ्ता सूबा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे बच्चों, फेक प्रोपेगेंडा को अपने दिल में जगह मत देना। और अगर कोई आपको ये कह दे कि मेरा ईंधन बन जाओ तो कभी इस बात पे कान न धरना। जिनको 9 मई को कहा कि अपने मुल्क पे हमला कर दो, वो बेचारे बातों में आ गए, अपने मुल्क पे हमला कर दिया और आज देखो अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और वो बच्चे जो हैं वो जेलों में रुल रहे हैं। जो आपको घेराव जलाओ की तरगीब देता है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको बताएं, शहर कायद की हर सड़क शहरियों के लिए अजाब से कम नहीं है। गुल प्लाजा के बाहर सड़कें तबाह हो गई। सेवरेज निज़ाम इंतजामिया की नाअहली को बयान कर रहा है। तफसीलात बताएंगे कफील अहमद। कराची की बात करते करते हम थक गए हैं, लेकिन क्या करें, बात इसलिए करते कि शायद उनकी हालत थोड़ी बहुत बेहतर कर दी जाए इंतज़ामिया की जानिब से। गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हूँ। मनाज़िर ज़रा आप देखें, टूट का शिकार है, गंदगी गलाजत के ढेर हैं, सीवरेज का पानी ने लाइनों पूरे रोड को तबाह कर दिया है। और थोड़ा सा अगर मैं यहाँ के एक जो दुकानदार भी हैं, यहाँ के इलाका मकीन भी आसिफ साहब मेरे साथ। आसिफ साहब, ये जो सूरत हाल है, देखें तो सही, आप बिज़नेस कैसे करें हम। और अगर कोई आता है बंदा फैमिली के साथ, कितनी बार वो गिरे हैं, उनके कपड़े ख़राब हुए हैं, फिर वो आना ही नहीं चाहते, वो बोलते हैं बिज़नेस कैसे करें हम। इधर से निकलते हुए कितनी बार निकले तो अगर फैमिली के साथ हम भी निकलते हैं तो गिर पड़ते हैं। हालत इतनी ख़राब है, किस तरह बंदा बिज़नेस ही टोटल ख़त्म कर दिया। इंतज़ामिया जो है कि टाउन चेयरमैन हैं या कोई इंतज़ामी है, उससे कोई बात हुई है भाई इस मसले को हल करें? कई बार कहा गया है पर कोई असर ही नहीं होता, फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई आए कुछ करे। कितनी बार हम लोगों ने कहा कि सब मिल कर। कराची वाले किससे कहें, क्या कहें, किससे बात करें इन मसाइल के लिए? तो ये तो हम ये ऐसी हालत कर दी गई है कि मतलब ये कहा जा रहा है कि किससे बात ही नहीं करें। यहाँ बात करना ऐसा है कि ना करने जैसे, तो कोई बात करना छोड़ दिया है। ताजिर परेशान है, दुकानदार परेशान है, इलाका मकीन परेशान है, लेकिन कोई सुनवाई। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह से कुछ नीचे आ गई है। 1 तोला सोना 2500 रुपये सस्ता होकर 4,07,778 रुपये पर आ गया है। सराफा मार्केट्स में 10 ग्राम सोने की कीमत 2144 रुपये की कमी के बाद 3,49,603 रुपये हो गई है, जबकि आलमी मार्केट में भी $25 कमी के बाद फ़ी ऑन सोना $3,865 पर है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।